टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़रूरी क़वानीन की वापसी के लिए मुल्क के किसानों के एहतजाज की तायीद का ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी 10 नवंबर से मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज शुरू करेगी, जिसके दौरान तमाम जिला मुस्तकों पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज के रवैये की वजह से ज़रूरी पैदावार का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और आम किसान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़रा से कहा कि वो आमी मसाइल की समाअत करें और उन्हें हल करें। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा का तकर्रुर कारों में घूमने के लिए नहीं किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने काबीना में तब्दीली का इशारा देते हुए कहा कि सिर्फ अहल अफराद ही को काबीना में जगह दी जाएगी। దేశద్రోహులం కాదు, అప్పుడు చాలా బాగున్నాం. వాళ్ళ యొక్క వివిధ బిల్లులకు పార్లమెంట్లో సపోర్ట్ చేయాలని మా సాయం కోరినప్పుడు దేశద్రోహి కాదు కేసీఆర్. ఇప్పుడు దేశద్రోహి అంటే ఎవ్వరు గట్టిగా మాట్లాడి నిజాలు బయటపెట్టి ప్రజల పక్షాన్ని అడిగితే ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు దేశద్రోహులు. అంటే బీజేపీ దేశంలో దేశద్రోహులను తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ ఏమన్నా? గట్టిగా ఎవరు మాట్లాడితే వాడు దేశద్రోహి తెల్లార వరకే. ఇది బీజేపీ స్టైలు చాలా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది కదా. ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో ఏ మూలలో ఎవరు నిలదీసి ప్రశ్నించి ఉన్న విషయాలు కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తే వాళ్ళు దేశద్రోహులు అయిపోతారు తెల్లార వరకే. ఒక స్టాంపు, వీళ్ళు 2-3 రకాల స్టాంపులు తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. ఒకటి దేశద్రోహి స్టాంపు, రెండవది అర్బన్ నక్సలైట్ స్టాంపు, ఇంకోటి ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే అర్బన్ నక్సలైట్. చూస్తున్నాం కదా దేశంలో జరుగుతున్న ఈ పరంపరగా గత 7 ఏళ్ల నుంచి. సత్యపాల్ మాలిక్ అని చెప్పి మేఘాలయ గవర్నర్, ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వమే నియమించిన గవర్నర్, నిన్న కూడా మాట్లాడింది ఆయన. ఈ రైతు చట్టాలు రైతు వ్యతిరేకం, ఇది అవసరమైతే నేను కూడా మద్దతు ఇస్తున్నా అని మాట్లాడిండు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి వరుణ్ గాంధీ కదా, మేనకా గాంధీ కూడా, వరుణ్ గాంధీ ఆయన స్వయంగా పోయి వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలిపి ఆ కేంద్ర మంత్రిని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేసి ఆ చట్టాలు విత్డ్రా చేసుకోమని మాట్లాడిండు. మరి ఆయన సంగతి ఏంది? ఆయన కూడా దేశద్రోహినా? మేఘాలయ గవర్నర్ కూడా దేశద్రోహినా? ఇట్లా ఎంతమంది దేశద్రోహులను తయారు చేస్తారు? నేను ఏం చెప్పినా చైనా ఆక్రమిస్తూ ఉంది ఈ దేశంలో. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా, ఒక పార్టీ అధ్యక్షునిగా డెఫినెట్గా దేశం మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటాం కదా, దేశం దురాక్రమణ జరగకూడదని కోరుకుంటాం. వాళ్ళు ఆక్రమిస్తున్నారని చెప్పి పేపర్లలో బాధపడితే ఫోటోలు వస్తున్నాయి, దాన్ని నిరోధించాలి అని చెప్తే దేశద్రోహులు అవుతారా? దేశం దురాక్రమణకు గురి కాకుండా చూడండి అంటే దేశద్రోహులు. कोविड-19 बहरान के दौरान नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों की एक तहनीती तकरीब हैदराबाद में मुनक्किद हुई। मुमताज़ समाजी जहदकार सोनू सूद और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव भी इस तकरीब में शरीक थे और उनके हाथों अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। सोनू सूद ने कहा कि मुसीबतज़दा और परेशान हाल अफराद की मदद करने वालों पर हमेशा तनकीदें की जाती रही हैं, उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन वो उसके बावजूद अपना काम जारी रखेंगे। रियासती वज़ीर के टी रामाराव ने कहा कि सोनू सूद हकीकी हीरो हैं। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के ज़रिए जो शोहरत हासिल की है वह बहुत कम खुश नसीबों के हिस्से में आती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर तनकीद करना आसान है, लेकिन अमली काम करना इंतहाई मुश्किल होता है। सोनू सूद ने ईडी और आईटी की कार्रवाइयों के बावजूद अपना काम जारी रखा। उन पर कार्रवाई सिर्फ अंदेशे के तहत की गई कि वो कहीं सियासत में शामिल न हो जाएं। के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सोनू सूद के साथ खड़ी है और उनके साथ ही काम करेगी। None of us anticipated. I think it was a huge challenge for the entire humanity. It was not the role of a government or just a non-government organization or even for that matter an institution. It was a challenge thrown at the entire humanity and how we've been able to step up in spite of not knowing how to handle it, in spite of not really having the ability when we began to be able to, kind of predict, project, understand how this is going to pan out. I think in spite of all the obstacles, we've done reasonably well, but we are not out of it yet. I think that's one thing we keep forgetting, we keep getting complacent. But I would like to say one thing. Many people, when I'm very active in social media, I'm on Twitter, I'm on other channels as well. It's very easy to criticize.
It's very easy to sit in the comfort of your own home. It's very easy to sit in the comfort of your own office and, drop in a few lines criticizing the government or criticizing an individual or criticizing somebody who's trying to do some work. But it's very difficult to actually get out of that comfort zone and start doing something on your own. And that is exactly what you guys have done. You got out of your comfort zone in spite of all the challenges, in spite of all the problems that were inundating us during COVID. Personally, in fact, I just met one gentleman who was telling me, I forgot his name, but I'll remember the words he mentioned. He had said that while he was suffering with COVID, while he was in ICU for 14 days, his wife was actually outside trying to coordinate with the rest of the world and trying to help the rest of the world while he himself was suffering in the ICU. So that is the kind of effort people have put in, and that is the kind of stellar, valiant efforts that have gone in. Like, our elders have said, the good karma that you gather, the goodwill that you gather, the punya that you gather, as they call it, is definitely going to help your children, is definitely going to help you, and I am very, very positive. मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने चीनी सरहदी तनाज़े पर पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में मुबाहिस का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम को तकसीम करने की पॉलिसी पर गामज़न है। चीन के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर खामोशी का हवाला देते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इससे चीन पर हमारी कमजोरी जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंद चीन ताल्लुकात पर पार्लियामेंट में जामे मुबाहिस हों। मुतनाज़ा सरहदी इलाकों का तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट के वफद के साथ दौरा करवाया जाए। सदर मजलिस ने कहा कि 2014 से कबल नरेंद्र मोदी सरहदी तनाज़ात पर बहुत बोला करते थे, वो कौमी सलामती के मसाइल तक उठाया करते थे, लेकिन अब चीन का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये डिमांड इसलिए किया कि प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था चीन की फौज ना घुसी हुई है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहाँ पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के LAC के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है, और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है। वहाँ उसकी PLA की फ़ौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फ़ौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फ़ौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार हैं, मैं तो जाने तैयार हूँ, लेके जाइए, हमको देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहाँ पे उसको बरकरार रख सकें। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, जिसको कोई मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं हैं, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने डिमांड किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहशंबा 10 नवंबर को वरंगल और हनमकुंडा का दौरा करेंगे। वहीं दोनों अजला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा TRS पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे। अवामी नुमाइंदों की मुसलसल ख्वाहिश पर चीफ मिनिस्टर ने अपने एक रोज़ा दौरे का प्रोग्राम बनाया है। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की हिदायत पर हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपनी सर्विस के औकात में नजरसानी की है। अब ट्रेन सर्विस सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 6 बजे शुरू होगी। KT रामाराव के ट्विटर अकाउंट पर
एक यात्री अभिनव ने शिकायत की थी कि सुबह की अव्वलीन सातों में काम को जाने वालों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सुबह 6 बजे के करीब कैब का मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लिहाजा मेट्रो ट्रेन सर्विस जल्दी शुरू की जाए। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी को इस सिलसिले में जरूर इक़दाम करने की हिदायत दी थी। पेट्रोल और डीजल पर वैट की कमी का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की खातून कारकुनों ने खैरताबाद में वाक़े सिविल सप्लाईज के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। सदर महिला विभाग P सुनीता रेड्डी ने कहा कि पंजाब के बशमूल कई रियासतों में आवाम का बोझ कम करने के लिए वैट में कमी की गई है, लेकिन रियासती हुकूमत ऐसी कमी से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं, चुनांचे उन्हें अवाम को राहत पहुँचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने होंगे। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी और तेलंगाना के इंचार्ज तरुण चुग ने कौमी और दफाई मामलात पर चीफ मिनिस्टर के बयानात की मजम्मत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बराजमान शख्स की जानिब से ऐसी तनकीद नामुनासिब है। उन्हें मुल्क की फौज और दिफा पर फख्र करना चाहिए था। तरुण चुग ने सवाल किया कि आखिर चीफ मिनिस्टर अपनी रियासत में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि तमाम बीजेपी इक़्तिदार रियासतों में ऐसी कमी की जा चुकी है। GHMC के हुक्काम ने इंदिरा नगर संतोष नगर में सड़क को घेर कर जारी तामीरी काम को रुकवा दिया। बताया जाता है कि दिलावर हुसैन नामी शख्स की जानिब से तामीराती काम पर मकामी अवाम ने एतराज़ किया और GHMC और पुलिस को इसकी इत्तला दी। मकामी मजलिस कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग और जोनल कमिश्नर रचना गुप्ता भी वहां पहुंच गए और हक़ाइक़ मालूम किए। एक दिलावर हुसैन नामी एक शख्स जो 25 साल ख़दीम CC रोड, जिसके तकरीबन 40 से 50 मकानात जो 40 साल से रहते हैं उनके आने जाने का रास्ता है, 6 फीट की ये गली है जिसमें CC रोड, वाटर लाइन, सेवरेज लाइन जो 25 साल पहले डाली गई है। ये शख्स आज से 10-15 साल पहले मकान बनाए और उनका भी इसी रोड से चलना फिरना है। इसी रोड पे जो है सो उनकी रास्ता है, उनका सेवरेज कनेक्शन यहीं से है, नल का कनेक्शन यही है, तमाम सहूलतें इसी रोड से हासिल कर रहे हैं। एक साल कबल जो है सो एक पड़ोसी के झगड़े के बुनियाद पे अपने डॉक्यूमेंट्स में ये ज़मीन मेरी है बोल के 1 साल पहले भी जो सो इस पर दीवार उठाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त ACP टाउन प्लानिंग मुकामी आवाम की शिकायत पे आके वो दीवार निकाल दी थी। अब एक कोर्ट को जो है सो गुमराह करके एक आर्डर लाया गया जिसमें यह बताया गया है कि बल्दिया हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहती है, जबकि बल्दिया कोई काम नहीं कर रही है और रातें रात जो है सो रोड को कवर करके शेड लगा दे के पूरी CC रोड उखाड़ दी गई। मुतालिका ऑफिसर्स ने इसका मुआयना किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। ये FIR है। अब रहा दूसरी बात, बहैसियत कारपोरेटर्स मुझे और मेरे साथी अब्दुल रहमान शाह को बदअखलाक़ी की गुफ्तगू और वीडियो बना के पोस्ट किए जा रहे हैं और किरदार कशी की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में 2002 से कॉरपोरेटर हूं और 45 साल खिदमत गुजार हूं। मैंने किसी का एक ज़मीन के किसी के हब्बे सिया का जिम्मेदार नहीं और यहाँ पर सैकड़ों मकान बने हैं, किसी से एक पैसा नहीं लिया। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत कॉरपोरेटर, अगर किसी रोड को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, रोड को उखाड़ दिया जा रहा है, रोड पर कब्जा किया जा रहा है, तो जाहिर है कि आवाम की तकलीफ का ख्याल करते हुए मुझे उसे रोकना है। मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरी किरदार कशी की जा रही है। कहा जा रहा है कि निज़ामाबाद में मेरी जायदाद है, फलां जगह मेरी जायदाद है। मैं दिलावर हुसैन से कहूँगा कि बेचारा गरीब है, सड़कें कब्जे करके घर बनाना चाहता है। अगर इस कदर बेघर है तो निज़ामाबाद में मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उसकी तहकीकात करके उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाए, मैं उसके नाम पे कर दूंगा दिलावर हुसैन के। मेरी और मेरी औलाद की एक ही मकान है मेरा जिसमें रहता हूँ। इससे हटके अगर कहीं भी अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो लाओ, दिलावर हुसैन और उनके भाइयों के नाम पे मैं जो सो अभी रजिस्ट्री कर देने के लिए तैयार हूँ। ये किरदार कशी की बात आप लोग अपनी आंखों से देखे हैं कि CC रोड को उखाड़ कर कब्जा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना बहैसियत कारपोरेटर मेरी जिम्मेदारी है। जमात के तेलंगाना वाटर बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 21 दिसंबर तक कोई ऐलान नहीं हुआ तो यूनियन हड़ताल का आगाज कर देगी। सदर यूनियन B सतीश ने कहा कि एहतजाजी अमल को तेज करने के लिए एक कमेटी जला मंडली कायम की गई है।
बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव को इसका एजाजी सदर मुंतखब किया गया है। ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసి టీఆర్ఎస్ యూనియన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నాము. మా గౌరవ అధ్యక్షులుగా దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి శ్రీ రఘునందన్ రావు గారిని కూడా మేము ఆనరీ ప్రెసిడెంట్గా పెట్టుకున్నాము. వారు కూడా మొన్న అరవింద్ కుమార్ ఎంఏయుడి సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి మా పిఆర్ని తొందరగా పేమెంట్ చేయాలి మా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్కి అని చెప్పి వారు కూడా అరవింద్ రావుతో మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా ఎండీ గారు కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేసి ఎంప్లాయీస్ సమ్మెలోకి పోకుండా ఎంప్లాయీస్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ కాపాడుతున్నారు కాబట్టి ఎంప్లాయీస్కి రావాల్సినటువంటి పిఆర్సీ విషయంలో కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ప్రభుత్వంతో ఇప్పిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కనీసం ఎండీ గారి దృష్టిలో పెట్టుకొనైనా ఈ ప్రభుత్వం తొందరగా నిర్ణయం చేసి మా ఎంప్లాయీస్కి రావాల్సినటువంటి రేట్స్ ఇప్పిస్తారని చెప్పి మీ ద్వారా ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. इजी बाजार गवर्नमेंट स्कूल में एक शख्स मोहम्मद जिलानी खान जिसे उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद मुलाजमत मिली थी, गुज़श्ता 25 साल से बिना तनख्वाह के खिदमत अंजाम दे रहे सदर ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन सैयद शमशाद खादरी ने मीडिया को बताया कि जिलानी खान की वालिदा हलीमा खातून 1961 से लेकर 1996 तक खिदमत अंजाम देती रहीं, जिसके बाद उनकी जगह जिलानी खान का तकर्रुर अमल में आया था। उनका मुस्तकिल न सही आउटसोर्सिंग की हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया जाता तो उनकी बड़ी मदद मिल सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जिलानी खान गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार कुमारवाड़ी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। मेरी मरहूम वालदा हलीमा खातून गवर्नमेंट स्कूल ईदी बाजार पर 1971 से 1996 तक जो है 4th क्लास का काम करते थे और 4th क्लास का काम करते थे और स्कूल के कुंजा मेरी वालदा के पास रहते थे। स्कूल 2 शिफ्ट चलता, सुबह 8 से 12:30, 12:30 से 5 बजे तक। तो स्कूल सुबह 6 बजे आके वालदा स्कूल खोलते थे और झाड़ू देते थे और टीचर्स को बच्चों को पीने के लिए पानी भरते थे। रोड पर नल था, रोड के नल से जो है पानी भरते थे वालदा, झाड़ों को पानी डालते थे और घंटी बजाते थे, अटेंडेंस काफ़ी फिराते थे। इसी तरह 12:30 तक काम करने के बाद 12:30 के बाद से 5 बजे तक दूसरी शीट में भी यही काम करते थे उन्होंने। उसके बाद जो है सो 6 बजे स्कूल बंद करके घर आते थे। मेरी वालदा इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी वालदा का जो है पोस्ट रेगुलर नहीं हुआ और उन्हें 1996 में ड्यूटी के वक्त उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो हमारे एचएम साहब बुला के बोले कि आपकी वालदा जो काम करते थे आप भी काम करो, आपको जो परमानेंट जॉब दिलाने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा उनकी बात सुनकर मैं आज तक जो है एक नौकरी के आस में अटेंडर की मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। मेरे को नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है। मेरी गुजारिश है हमारे हाँ मेरे घर के हालात ये है कि इस वक्त जो है मेरे को ज़िंदगी गुजारने को सहारा नहीं, कोई आमदनी का जरिया नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करने के बावजूद भी जो है लोगों से मदद मांगकर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर से, एजुकेशन ऑफिसर से और जो है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तेलंगाना KCR साहब से, KTR साहब से और एजुकेशन ऑफिसर से मेरी गुजारिश है कि जो है मेरे को जो है टेम्पररी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिया तो मैं 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाती और मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। कितने साबिका में क्या हेडमास्टर नहीं, साबिका में क्या हेडमास्टर आपको कोई सर्टिफाइड कराया था, सर्टिफिकेशन? हाँ लिखे दिए थे, लोग काम कर रहे हैं ना। इनको जो है डीओ को भी जो लिखे भेजते थे कि जिलानी खान को नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनको जो है अपॉइंटमेंट आर्डर दीजिए बोल के लिख के देते थे। ये सर्टिफिकेट है। अच्छा ये HM साहब लिखे दिए सही है 2020 में। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से होने वाली लगातार बारिश से तमिलनाडु का दारुलहुकूमत चेन्नई बुरी तरह मुतासिर हो गया है। तकरीबन पूरा शहर पानी में डूब गया है और आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। कई इलाकों में घरों में तक पानी दाखिल हो चुका है। 2015 के बाद ये पहली मरतबा है कि चेन्नई में इस कदर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और राहत और इमदाद के काम बड़े पैमाने पर शुरू करने की हिदायत दी। चेन्नई में 140 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ने रियासत के कई अजला में स्कूलों को 2 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी जमा हो जाने की वजह से कई परवाजों को मनसूख करना पड़ा। इसी तरह ट्रेन सर्विस भी मौजूद हुई है। चेन्नई में घरों में फंसे हुए लोगों की नकल मकानी के लिए किश्तियों का तक इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से नोटबंदी के ऐलान के आज पीर 8 नवंबर को 5 साल मुकम्मिल हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़राए ने कहा कि इस नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो काला धन वापस हुआ और ना ही करेंसी के चलन में कोई कमी देखी गई। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अचानक ऐलान किया था कि मुल्क में 500 और 1000 रुपये की नोटों का चलन 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। इस ऐलान के बाद मुल्क एक जबरदस्त माशी बहरान से दोचार हो चुका था। नोटों की तब्दीली के लिए कई दिनों तक बैंकों पर तवील कतारें देखी गई थी और इस अमल में 100 से ज्यादा अफराद फौत भी हो चुके हैं। बहरे अरब में गुजरात के साहिल पर मछेरों की कश्ती पर फायरिंग के वाक़े के सिलसिले में जिसमें एक मछेरी की मौत हो गई, गुजरात के जिले पोरबंदर में पाकिस्तानी बहरिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। फायरिंग में जख्मी एक मछेरे दिलीप सोलंकी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 नवंबर को हुए इस वाक़े में थाने महाराष्ट्र का एक 32 साला मछेरा श्रीधर रमेश हलाक हो गया था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी बहरिया की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत की और पाकिस्तानी हुक्काम से मसला उठाया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों से हिंदुस्तान के खराज पर अफसोस का इजहार किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तानी खिलाड़ी मुल्क के लिए खेलने के बजाय IPL मैचेस को तरजीह देंगे तो ऐसी ही सूरत हाल का पैदा होना फितरी बात है। कपिल देव ने कहा कि वो चाहते हैं कि MS धोनी ऐसे माहौल में हिंदुस्तानी टीम का हौसला बुलंद करें। BCCI का भी काम है कि वो हिंदुस्तानी टीम के लिए अच्छी मनसूबाबंदी करे। वाज़ेह है कि कपिल देव की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 11,451 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 266 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान भर में इतवार को 8,70,058 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 61 करोड़ 60 लाख अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी तरह हुकूमत ने यह भी बताया कि 24 घंटों में 23,84,096 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा चुके हैं। इस तरह अब तक टीके लेने वालों की जुमला तादाद 108 करोड़ 57 लाख हो चुकी है।